Akshar Prajapati only. Akshar, you want to become a structure engineer, right? Yes, What inspire you to become a structure engineer? sir. Structure. Uh, I uh, I think structure is a very good in civil engineering. It is a very professional field in civil engineering. And civil engineering is also we call say it is a king of every engineer because first of all, civil engineer is the branch where engineers start to work. And in civil engineering, basically structure engineer is a heart. So I inspired that reason to do structure engineer, and also I like structure to play with structure. So I inspired by this reason to do structure engineering. Oldest engineering of the world, which one? Oldest. ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग्स कौन सी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग है? Sorry, sir, I did not understand this. आई सेड लाइक सबसे पुरानी इंजीनियरिंग कौन सी है? सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, Sir, इलेक्ट्रिकल? obvious civil engineering. Civil engineering. ऑब्वियस सिविल इंजीनियर, Yes, बट sir. इट्स रॉन्ग आंसर. Yeah. Okay, difference research after the class. uh, Difference between fe 415 and 500 and 550. Okay. Sir, basically FE 415, FE 500, and FE 550. This is a grade of reinforcement. Where FE 415 is a high yield HYSC bar, high yield strength and deformation. Uh, and FE 500 is a TMT bar, thermomechanical treated bar. And Fe means iron, and 415 or 500 or 550 indicate that its yield strength. That is depend on carbon percentage. Yes, sir. If carbon percentage is a very high, so carbon percentage is high, so ductility increase. Carbon percentage is high, so duct, ductility is high, High. and carbon percentage is low, so yield strength is high. Okay. What do you understand by 500 SD? SD. 5 SD. Right now the bars are coming in market. That is 500 SD, 550 SD. SD means, sir, D means ductility. Okay. I I'll I give you the googled it, but I didn't know S super means. ductile. Okay, sir. Super ductile. Okay. What are the advantage of StatPro in structure engineering industries? Sir, STAAD Pro is a basic software to structure analysis and design. I think it is there are some very famous structure designer, and in that one of the best and oldest is STAAD Pro. And advantages of STAAD Pro it is a in STAAD Pro modeling is easy, and main advantage we can say it is in analysis. In StatPro we can see manual calculation also, where in other software it is automatically. In StatPro we manually see calculation also. Okay. For how long you can stay in our company? So at uh, 3 to 5 years. 3 to 5 year, sure. Yes, sir. So there is a bond from my side only for 3 years. You said 3 to 5 year, but from for my bond is that is for 3 years. Are you comfortable to do the bond with us for 3 years? Sir, 3 year is very difficult for me, but if 1.5 or 2 year, it is compatible with me.
But before this question, you said na कि I'll stay in your company 3 to 5 years. Sir, it is not compulsory. If there is a bond, then if there is a bond, then I will stay there. It is not compulsory there. So it is bond is a one type of mentally burden. Okay, you have 3 year bond. So M- 1.5 mean and two means is a there was a correction between your question, your answers and bond, right? Because you just said na, like 3 to 5 years I'm comfortable. I'm not asking about the five. I'm just telling about the three minimum. But you're not comfortable na. So you can say the right answer is not this one. You can say ki if like I'll stay here only because right now I need to learn the things. If I'll get the good professional growth for mine, I'll stay in your company only. तो इस तरीके से आंसर देना है कि भाई ग्रोथ हो रहा है तो मैं इसी कंपनी में लगा रहूंगा. यू कांट डू द डेट्स. फंस गए ना डेट में. ओके. yes, sir. व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? Sir, basically, it is as per industry's norm. But I just want to know in numbers so that I can be confirm like what your expectations now. Sir, 30K to 35K in hand salary. Okay, that will be in yearly. How much? Sir, 30 means 3.6 to 4.5 LPA. That is that CTC you need, right? Yes, sir. What is CTC? 4.5 to 5. Cost to company, sir. Okay, cost to company 4.5 to 5. Okay, thank you so much, Akshay. This was nice to talk with you. Great. Okay, now Mr. Ali. Ali, are you ready जी for the सर मैं call? Okay. नो सर सर पहले सबका ले लीजिए फिर मैं दूँ. ओके. तुम्हारा एक प्रॉब्लम है क्या है अली, तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस रेज नहीं हो रहा है. तुम्हें चीजें आती हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, जस्ट वर्क ऑन दैट. और कॉन्फिडेंस ना होने का एक रीजन बताता हूँ. तुम्हारा रीजन कम्युनिकेशन है, ठीक है. फिलहाल कोई बात नहीं, ठीक है, टेक टाइम. ओके, लेट्स स्टार्ट विद समीर देन राजस. समीर ऑन योर माइक. समीर ऑडिबल नाउ? गुड मॉर्निंग जी. आर यू नॉट इन योर होम? चलो राजस से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक वो घर पे नहीं है. Hello, sir. यस राजस. राजस, give me the brief introduction of yourself. Good morning, sir. Thanks for giving me this opportunity to present myself. I am Rajesh Rasam from Mumbai. I am currently in the eighth semester of my bachelor's degree in civil engineering from Mu- Mumbai University and have completed my diploma from MSBT in 2020. During my diploma, I did a site engineering internship for 2 months, and for the last 5 months, I am working as an intern structural engineer at Unix Civil under the guidance of engineer Akash Pandey. I have trained in building laws and structural concepts and software such as AutoCAD in 2D and 3D with StatPro and RCDC, and currently learning E ETABS and will move to SAFE in future. I have done practice on projects on residential building and steel structures in AutoCAD. I have worked on architecture planning, center line, grid plan, floor level, and other important details for structures. Addition to that, in StatPro, I have worked on analysis and design of RCC and steel structure. Plus, I have worked on RCGEC for detailing, and currently have some good knowledge of ETABS. Also, I am good at Microsoft Office and Python programming language. My hobbies are Indology and reading few Indian philosophical books. Great.
वो पाइथन को यहाँ पर ऐड मत करो राजस, जब तक कि वो Yes. कंपनी ऐसा ना लगे कि कोडिंग वोडिंग को सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है, निगेटिव हो सकता है। मे बी दे कैन थिंक ओके ही इज इंटरेस्टेड इन कोडिंग आल्सो। सर गोदरेज ने मेरे को बोला था, मतलब तुमको पाइथन आता है तो सो यू कैन जॉइन एज एन इंटर्न, सॉरी इंटर्न नहीं, इंटीरियर डिजाइनर, वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। तो मैं हाँ, हिचकिचा गया था, ये क्या है। देख लो, तुमको आंसर मिल गया ना, ऐसा ही होता है। ठीक है, इसलिए अगर ऐसी भी कोई कोई भी स्किल आती है विच इज नॉट रिलेवेंट टू यू, राइट, देन यू डोंट मेंशन दैट। अदरवाइज देखो अभी क्या बोला, वो तुम्हें डालने जा रहा था सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पे, राइट, तो तुम्हारा यस करियर सर। चेंज कर देता वो। इसलिए ऐसे जैसे कुछ लोग आते हैं सी प्लस, मुझे भी आता है सी प्लस प्लस, अच्छे से आ जाता है मुझे काम भर का। तो आई नेवर यूज दैट। सम ऑफ माय फ्रेंड सेड कि डोंट मेंशन, बिकॉज इफ यू जस्ट से कि सी प्लस प्लस, बिकॉज जो अपने यस सर। सॉफ्टवेयर होते हैं ये डॉट नेट और सी प्लस प्लस से कोडिंग होके बनते हैं। और मेरे एक कीवी कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हुई, मैं वहाँ जाके पता किया तो उन्होंने बोला कि हमने कोडिंग मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको हायर किया हुआ है। मैंने कहा नहीं, मुझे करना ही नहीं है, तो डोंट मेंशन, ओके। Next is what you say your hobbies? So Indology, Indology. What is Indology? I don't know much. Explain. the historical of India. Sorry, sir, Indic uh, means Indian history. Indian I mean, history. and the yes, yes. It is Okay. the use. Sorry, yes. Sorry. Okay. So that Indology means Indian history. That's right. Yes, yes, Okay. but it has a time frame, so it is. Yeah, I just heard about that there are three time phases, if I'm not wrong. No, so there are not three time phases. The uh, phrase from the British to the Yes. current time is not considered in Indology. Okay. Means that is not in Indology, right? Yes, yes, not considered in Indology. Okay. Till the Like, end of Marathas, it is considered in oh, Indology. so after like British to till now, this is not in Indology. It is the colonial period, so it is considered in different things. And current India is viewed by the other world as a British legacy. Okay, because I'm not like I don't have a knowledge of this, but my sister is preparing for the AS, so she just tell me that related to that, that is BC, AC, and Yes, yes, the different yes, different yes. things. She just teach me. I just forget that. You just mentioned, then I just remember that. Okay. Uh, what the use of IS 1893, and any important point you remember in IS 1893? You can just explain. IS 1893 is a earthquake resistant design. So uh, currently there are it defines the 5 zones of the India of seismic zones, and currently they are trying to add the sixth zone too. With that, it tells us about the formula to calculate the AH, and it tells us the return period of those zone factors we have used in the calculations of AH. These are the three main points, I believe. Correct. But there was only four zone, na? That is the fifth zone. No zone, no name is six. So in new draft, they are trying to add the That is zone six. They are trying to add, na? yes, yes, But zone, six. yeah. So that is total zone will be five, na? Because zone Yes, one yes. is already merged in zone two. So right now the Zone two, yes. zone is only four. But they are trying to add the new zone. That is zone number six. But that is zone number fifth, right? Yes, sir. You can. Okay. Uh, when we go for wind analysis, there is a terms K1, K2, K3. Are you remember the K1, K2, K3? So K1 means risk coefficient, K2 means terrain factor, and K3 means top, topography factor. And they have also added K4, which means cyclone factor, which is only used on the uh,
eastern and western coast, and it will be used from 1 to 1.5. ग्रेट, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच राजेश, मुझे जानना तुम्हारा अच्छा लगा तुम्हारा इंटरव्यू लेके, और काफ़ी कुछ तुम्हें ऐड है, बस थोड़ा सा तुम्हें बोलने में दिक्कत जा रही है, बाकी नॉलेज तुम्हारे हाँ पास है। सर, टाइम मार करते हैं सर, हाँ थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज ओके। ठीक है। तो पहले से। हाँ वो धीरे धीरे वो एज के साथ अपने आप कटती भी है, ठीक है, और समय लगता है उसको कट होने में, बट ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच राजेश। थैंक यू। ओके, अक्षर कुछ बोलना चाह रहे थे क्या तुम? हैंड रेस किया था तुमने। हाँ सर, वो मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसको भी सी कोडिंग में इंटरेस्ट था, तो उसने रिज्यूमे लिखा ना, तो कंपनी ने उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल दिया। हाँ इसलिए मतलब अवॉइड करना चाहिए, बता दो रहा हूँ, मेरी ना सी सी प्लस प्लस काफ़ी ठीक ठाक आती थी मुझे, अब तो भूल गई है काम भर की। ठीक है, उसका थोड़ा बहुत यूज मुझे मास्टर्स में भी हेल्प किया था उसने, एफ वगैरह में। तो उनके एफ जो होता है उसको कोडिंग से भी कर सकते हो, फाइनाइट एलिमेंट मेथड के सॉल्व सर्विसेज को, तो थोड़ा बहुत हेल्प और किया था। कोडिंग आती है ना, तो सर वो वीबीए से एक्सेल शीट बनवाते हैं। वीबीए हाँ में वीबीए प्रोग्रामिंग से एक्सेल शीट बनवा रहे, उसको मैन्युअल के लिए यूज करते हैं। यूज करते हैं, तो उससे और सर बेटर। एक और बात, बोलो बोलो। एक और बात कि वो ड्राफ्ट आया है, तो हमें इंटरव्यू में मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल तो अभी आया नहीं हमारा क्या कोड जोन में। 6 के वो बारे में बोलो? हाँ सर, वो तो अभी ऑफिशियल तो आया नहीं है कोड में, तो नहीं तो हमको करना चाहिए या नहीं? रिज्यूम में नहीं मेंशन करना है, जब ओरली जब रिज्यूम बात में नहीं कर। सर, इंटरव्यू में पूछ, अभी आपने पूछा, तो हाँ हमको मेंशन करना चाहिए कि ये ड्राफ्ट में ऐसा आया है। ये अच्छी चीज होगी, बताओ क्यों? इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट द न्यू थिंग्स, राइट? सो डेफिनेटली यू नीड टू मेंशन दैट, बट पहले जोन अपना कंफर्म बता दो। बताने के बाद देर इज एडिशनल क्लॉज, इट इज इन ड्राफ्ट राइट नाउ, बट द थिंग्स आर देयर कि जोन 6 दे आर ट्राइंग टू ऐड, और उसमें जो जो तुमको पता है वो बता दो। तो उससे क्या हुआ कि देखो हर किसी को अच्छा लगता है कि आप उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते रहो। जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग ऑफ द ओल्डेस्ट कौन सी सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग है, मैंने क्यों पूछा? मैकेनिकल। हाँ मैकेनिकल, बट मैकेनिकल में भी मिलिट्री इंजीनियरिंग एक्चुअली, यस यस, फुल ट्रेनिंग। मिलिट्री इंजीनियरिंग से। तो अब मैंने क्यों पूछा, मैं जानना चाहता था कि अक्सर रेदर देन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का आउटर पोर्शन क्या है, अभी इनको बोलना था सेकेंड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कौन सी है, वो सिविल इंजीनियरिंग है। मिलिट्री इंजीनियरिंग द फर्स्ट वन, सेकेंड इज सिविल इंजीनियरिंग। अब इससे क्या हुआ, इससे पता चला कि अक्षर को आउटर कितना आता है। जैसे कभी कभी मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि यू फ्रॉम विच सिटी यू आर, तो तुम बोलते हो कि नागपुर से, कोई बोलता है राजस्थान से, कोई बोलता है जयपुर से, जहाँ जहाँ से बोलते हो। फिर बोलता हूँ कि व्हाट आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस या 5 मोस्ट विजिटेड प्लेस। ठीक है, क्यों, इसका क्या जरूरत है? भाई एक सिविल इंजीनियर जब तक इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानेगा तब तक अपनी व्यूज नहीं रख पाएगा। यहाँ बिल्डिंग बनानी है तो क्यों बनानी है, इस बिल्डिंग को सेल होने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? एयरपोर्ट से कितना दूर है, रेलवे प्लेटफॉर्म से कितना दूर है, ठीक है, बगल में शॉपिंग मॉल कौन सा है, हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है। ये सब चीजें मैं देखा होगा ना, मार्केटिंग के लिए जाते हो तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ना इन सब चीजों की। ये बेचने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये लोगों का। अगर एक अपार्टमेंट को तुमने सिटी के बीचों बीच बनाया हुआ है तो 10 करोड़ का जाएगा, सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर बनाया है तो 1 करोड़ में भी बेचना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फर्क क्या यस है? सर। सेम बिल्डिंग रहेगी अक्सर, बट फर्क क्या हाँ रहेगा, सर, है ना? तो फर्क ये प्लेस रहता का। है। यस, तो इसलिए इन्वायरमेंट का भी नॉलेज सिविल इंजीनियर, हमारा एक डोमेन ही है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग्स। ठीक है, यस सर। और जब तुम पता नहीं तुम लोगों ने वो एक राबी रैबिट के लेक्चर में पढ़ोगे कि हमने स्कूल प्रोजेक्ट पढ़ाया हुआ है, तो हमने बताया हुआ है कि जब कहीं पर बिल्डिंग बनाने जाओ तो 3 चीजों को सबसे पहले देखो। क्या है वो 3 चीजें? पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट है क्या वहां पे, अगर नहीं है खुद से करना पड़ गया तो बहुत कॉस्टली जाएगा। दूसरा चीज आपको देखना चाहिए सीवर लाइन का अरेंजमेंट है कि नहीं। अपार्टमेंट बना रहे हो, कोई अब टंकी बना के काम थोड़ी चल जाएगा अपार्टमेंट के लिए, तो सीवर लाइन है क्या, पता करो। उसके बाद तीसरा चीज वाटर पाइपलाइन है कि नहीं, क्योंकि पाइपलाइन बिछाना अपने आप में बहुत कॉस्टली होता है। अब वो लोग सर इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं, करना क्या है उसको, क्या बोलते हैं, 20-25 पाइप खोद के लगा नहीं सकते हैं? इतना आसान नहीं है। आप ऐसे ही किसी भी क्या बोलते हैं पाइप को सेट कर देंगे जमीन में, ऐसा नहीं होता है। पाइप को सेट करने के लिए पहले आपको CPWD से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन मतलब समझ जाओ कि कैसे परमिशन होता है।
उसके बाद परमिशन लेने के बाद वहां पर खुदाई करनी पड़ेगी, खुदाई करने का भी कॉस्ट आपको पे करना है। खुदाई करने के बाद CPWD को पे करना है उतने जमीन का जो आप खुदाई कर रहे हो पाइप लगाने के लिए, उसका रोड बनाने का जो कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट एक्चुअली ज़्यादा ही बोलते हैं, वो कॉस्ट पूरा का पूरा वो लेंगे आपसे। उस कॉस्ट को लेने के बाद तब आपको परमिशन देते हैं, तो CPWD से परमिशन। उसके बाद पाइप लगाते समय जनरली ऐसा हो जाता है, कभी एयरटेल का पाइपलाइन कट गया, कभी जियो का कट गया, कभी BSNL का कट गया। अगर किसी का भी कट जाता है कोई भी वायर वगैरह, पूरा वायर उनको चेंज करके दो, या फिर उनको कंपनसेशन अमाउंट के रूप में जो पैसा वो मांगेंगे वो पैसा आपको देना पड़ता है। तो इस तरीके से जाके आपकी वाटर पाइपलाइन लगती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, ऐसे ही क्या बोलते हैं सीवर लाइन का। तो ये 3 एमिनिटीज तो हमेशा चेक करके तब कंस्ट्रक्शन के लिए सोचना चाहिए, इवन तभी जमीन लेना चाहिए। सही तरीका ये है। अली कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ अली बोलो। जी सर, जैसे कि वो प्रोजेक्ट था मेरा हम्म जो मैंने सबमिट किया था, हम्म तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर पैनल, ये सब ऐड कर सकते हैं क्या ये फॉर तो जा पर्पस ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट? अभी तो सिटी के अंदर जो कॉरपोरेशन में जो घर आ रहे हैं उनमें तो ये कंपलसरी कर चुके हैं। ठीक है, वो बात की बात है, अगर कोई नहीं बना रहा है पैसे वैसे दे के मैनेज कर रहा है वो अलग बात है। इनलीगल तौर से, लीगल तौर से अभी ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना कंपलसरी हो गया है। उसका कुछ 30% से 40% का क्राइटेरिया है, कितना तो फॉलो करना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी कंपलसरी हो गया है क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये और इवन सोलर पैनल कंपलसरी हो गया है। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि तुमको करना चाहिए उसको। एक बात और सर, जैसे कि प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सब किस जैसे कि IS कोड के अकॉर्डिंग ये किया जाता है, सेट किया जाता है? हाँ जैसे कि बिल्डिंग डिजाइन करते तो अकॉर्डिंग टू बायलॉज, तो वैसे ही कॉलोनी अगर प्लान करे तो उसका कोड क्या है? ठीक है, कोड नहीं होता कॉलोनी का, एग्जैक्टली कॉलोनी का कोड नहीं होता है, बिल्डिंग का कोड होता है। ठीक है, जी सर। कॉलोनी में जो बिल्डिंग्स बनेंगे उनके लिए रूल्स रहेगा, जो कि रूल्स पूरा का पूरा आपके उस जगह से के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि अभी तुम्हारा अगर वही चीज तुम दिल्ली में कर रहे हो वही पुणे में करो, और वही तुम क्या बोलते हैं हमारे इलाहाबाद में करो, तो रूल सबके लिए अलग अलग है कॉरपोरेशन के। तो वहां पर हमारा बिल्डिंग बाय लॉ ही एक्ट करेगा। ठीक है, और बिल्डिंग बाय लॉ और टाउन प्लानिंग अथॉरिटी जो वहां पर सेट कर रही है। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग अथॉरिटी हर सिटी के लिए अलग अलग सेट करती है स्टैंडर्ड। रीजन ये होता है कहाँ पर रस ज़्यादा है, कहाँ पर रस कम है, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पॉपुलेशन कम, और कहाँ पर एरिया देखना पड़ता है कि एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, उसके बेस पे रेशियो निकाला जाता है कि हाँ यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। तो वहाँ के लिए आपको वहाँ का बिल्डिंग बाय लॉ ही फॉलो करना पड़ेगा। तो सर टाउन प्लानिंग अथॉरिटी कुछ लॉ देती होगी ना, तो उसको हाँ, कैसे हर जाने? वो हर उसके वेबसाइट पे चले जाओ, हर जगह वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल करा के रखते हो। हर कॉर्पोरेशन का टाउन प्लानिंग अथॉरिटी वाले अपना अलाउ करके अपना वो बना के रख देते हैं, आप डाउनलोड करके रख लो। फिर आप लाइसेंस बनवाते हो तो ऑलरेडी जिस वेबसाइट जिस जगह से बनवाते हो उनकी बुक्स भी आती हैं। ठीक है, मतलब आप चाहें तो उनकी हार्ड कॉपी बुक्स ले सकते हैं। ये देखो मैं क्या होता है ना, सिविल इंजीनियरिंग पूरा जैसे लॉ होता है, LLB होता है, एकदम वैसे ही है। ठीक है, इसमें भी हर चीज़ का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वैसे ही करके आप देख सकते हैं। इवन यहाँ पर भी जैसे कि पुराने जो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, आप उन प्रोजेक्ट्स को अरेंज कर पाते हो अगर, तो वो प्रोजेक्ट्स को लेके उनकी स्टडी कर सकते हो कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या कैसे कैसे किया, तो सारा लॉस उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है। लॉ में ये चीज़ है अच्छी, सिविल इंजीनियरिंग में ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने कभी एक बार सोचा था, ऐसे तुमने छेड़त बता रहा हूँ, मैंने सोचा था कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स का एक डिटेल नोट्स होना चाहिए अपने पास। नोट्स इन द सेंस कि एक बुक होनी चाहिए जिस बुक के माध्यम से, है थोड़ा बहुत है बट उस लेवल पे नहीं। राजेश कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, मेरे को भी सेम ही लगता है ऐसा। मतलब हाँ भाई सर वो होगा तो इजी पड़ेगा समझने में कैसे हाँ क्या देगा। एग्जैक्टली exactly। तो इसके बारे में मैंने सोचा था एक बार, तो क्यों मैंने क्या सोचा पता है क्यों? मैं हमारे अंकल हैं लॉयर हैं, जो उनके पास क्या आती हर महीने बुक्स आती थी। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये हर महीने आपके पास बुक्स कौन कौन सी आ जाती है, इतना ढेर सारे बुक्स क्या करते हैं आप? तो उन्होंने बोला कि ये बुक्स हमने बंधाई हुई है। बंधाई मतलब वहाँ पर एक पब्लिकेशन होते हैं जो कि उस महीने के जो इम्पोर्टेंट केस हैं उस केस को कैसे जीता गया, उस केस में क्या क्या अमेंडमेंट रखे गए हैं, कौन कौन से एक्ट्स लागू किए गए हैं, जिसके माध्यम से जज ने जो डिसीजन दिया उसकी रिटर्न नोट्स होती है। तो उसको मिला के हर महीने बुक छपती है। तो वो बुक हर महीने पब्लिशर जो होते हैं ना अपने हर वकील के घर पे पहुंचाते हैं, जो जो अपने रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, उसका कुछ चार्ज आता है 500-600, तो उनको मिलती है बुक्स। ये चीज़ सिविल में नहीं है।
ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत 2-4 लोगों से डिस्कस किया इसके बारे में। तो आंसर्स में ये आया कि भाई अभी सभी अपना डिज़ाइन मेथड आइडियोलॉजी शेयर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरी तरीके से क्लोज नहीं मतलब ओपन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन है। तो कंपटीशन तो वहाँ पर भी है, बट यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लोगों का ये मानना है कि हम अपना डिज़ाइन मेथड, अपना कैलकुलेशन मेथड ये सब डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से वो नहीं हो रहा है। बट अगर हो तो बहुत अच्छा है ये चीज़ कि हर महीने, क्योंकि नए नए बिल्डिंग्स तो बन ही रहे हैं, हर महीने इस पे पब्लिश की जा सकती है बुक्स, और जो इसको इनिशिएटिव करेगा बहुत पैसे कमाएगा वो। हाँ अली बोलो। जी सर, समझ गया। ठीक है, तो तो तुम ठीक सोचो है, कि तुम करो इसको। अगर बिल्डिंग बाय लॉज को खोल के अगर पढ़े तो ये सारा अमेंडमेंट वहाँ मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। ठीक है, हर एक कॉर्पोरेशन का मिल जाएगा। इवन हर एक कॉर्पोरेशन अपना खुद से बिल्डिंग वाला छपवाता ही छपवाता है। ठीक है, जी तुम सर। चाहे जिसका चाहो उसका तुम नेट पे डालो कि इस कॉर्पोरेशन का चाहिए, तो वहाँ पर अपनी आप उस कॉर्पोरेशन मिल जाएगा। और वहाँ पे बता दें, लोकल लोगों से जाके वहाँ से बुक्स भी खरीद सकते हो, बट अभी क्या पीडीएफ से काम हो जाता है। जी सर। सर आपने बोला था आप जब घर में थे तो बोले थे कि कम्युनिकेशन का बैच चल रहा है तो यू कैन ज्वाइन। हाँ बोला था ना। अरे तो अभी भी चल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लो। अभी तुमको ऐड करना है, बोले कांटेक्ट करने के लिए बोला था ना हमने। तो सर फी भी ठीक, बता दीजिए क्या है तो नहीं है। उसका कुछ भी नहीं है। गुरुकुल वालों के लिए तो कुछ नहीं है, बाहर वालों के लिए तो 3000 है। गुरुकुल वालों के लिए ओनली 1500 है। ठीक है, उसको करके कंटिन्यू कर लो, अभी बैच चल ही रही है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो, क्योंकि लेट जितना करोगे तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम जा रहा है कम्युनिकेशन में। ठीक है, और ऐसे तुम्हारा जा रहा है, बहुत से लोगों का जा रहा है कम्युनिकेशन की वजह से, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं क्या बताऊँ अभी भाई सर सीधी। हाँ बोलो। अगर कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगा तो सच में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि नहीं होगा। अपन तो जो पढ़ लिए तो पढ़ लिए, वो पता है अपने को, पर कंपनी को थोड़ी पता है क्या पढ़ेगा। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हो रहा है। अली कितना पढ़े हैं, कितना इनको आता है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं रोज पढ़ा रहा हूँ। राइट है। जी। जो पहली बार देखेगा वो कैसे कमेंट जज कर लेगा कि अली को क्या भाई, अली एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। यस सर। ठीक है, तो वैसे मैं इसलिए कर भी नहीं पाता हूँ, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम से बहुत पढ़ा हूँ, तो ऐसा ही हो तो रहा है। हिंदी मीडियम कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पहली चीज ये मान लो, क्योंकि हिंदी मीडियम से तो मैं भी पढ़ा हूँ। ठीक है, और हिंदी मीडियम इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, बस प्रॉब्लम इज योर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज व्हाट कि लाइक आवर इन आवर इन्वायरमेंट एवरीवन इज टॉकिंग इन हिंदी ओनली। ठीक है, यस सर। आप अब महाराष्ट्र में हो तो मराठी ओनली। ठीक है, बिहार में हो तो बिहारी ओनली। सो वी आर यूज टू विद लोकल लैंग्वेज, राइट? सो वी डोंट हैव अ प्रैक्टिस। तो यू जस्ट नीड टू चेंज द इन्वायरमेंट, दैट्स इट। लोग बोलते हैं ना कि अंग्रेज का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको इंग्लिश थोड़ी सिखानी पड़ती है कि क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे इंग्लिश के लिए ये ट्रांसलेशन यूज करो। देयर वाज अ इन्वायरमेंट। ठीक है, वो अपने आप ही बड़ा होते थे। अभी अपने आप वो बच्चों को हिंदी थोड़ी सिखाते हैं कि ये होता है स्वर, ये होता है व्यंजन, ये होता है अलंकार। सुना है कभी अलंकार? मतलब बचपन में पढ़ाया गया हम लोग को अलंकार, जो भाषा का आभूषण होता है, सुना है क्या? स्वर संधि ये होती है, ये सब तो कोई पढ़ता नहीं है उसको, इन्वायरमेंट से सीख जाते हैं। तो तुम अपना इन्वायरमेंट ऐसा करो। तो ये जो कम्युनिकेशन की क्लास चलाई है, उसका मेन मोटो है इन्वायरमेंट। एटलीस्ट 1 घंटा तो उस इन्वायरमेंट में रहे जहाँ केवल इंग्लिश का कम्युनिकेशन हो, है कि नहीं? जी ठीक सर, है। नंबर वो मैम का नंबर है, वो दे दीजिए। ठीक है, नहीं मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ यूनिक सिविल से ही हो रहा है। ठीक है, हमने ही उनको हायर किया हुआ है, तो मैं ऐड करवा दूंगा तुमको। ठीक है, ठीक है सर। चलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्या बोलते हैं, राजेश का हो गया, नाउ स्टार्ट विथ अली ओनली। ठीक है, इसका मॉक है इसलिए इधर उधर घुमा रहा है मुझे। ठीक है, ओके अली, स्टार्ट द मॉक विथ यू। व्हाट वाज योर कॉलेज प्रोजेक्ट? सर ग्रीन बिल्डिंग कौन सा? ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन अबाउट द ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। सर ग्रीन बिल्डिंग इज ए न्यू new edition of the sorry sir, I can't explain. Okay, there are some institutions, you can say, or you can say organizations who provide you the certifications for the green building. You know the any like institution or organization name? Yes sir, town planning authority.
white curve. IGBC, BREEAM, you heard about them? No sir. देखो ग्रीन बिल्डिंग पढ़ लिया, मेरा वीडियो नहीं देखा तुमने यूट्यूब पे, ठीक है। सर उस समय आपका वीडियो देख के मैं आपको प्रोजेक्ट सबमिट किया था, बट उसमें मैं कॉलेज में ये भी किया था, बट 2021 ग्रीन बिल्डिंग पे मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हुए हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है ये भी बताया हुआ है मैंने, कि क्या बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करो और उस पर कैसे अथॉरिटी कैसे लोगे, वो भी उसके लिए भी मैंने रूल्स, क्योंकि कैसे है कि अगर आपका ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है तो आपके बिल्डिंग का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे 5% सर। हाँ मतलब वो डिपेंड करता है तुमने कितना परसेंट फॉलो किया हुआ है उसके बेसिस पे। जैसे कि तुमने सुना होगा इन्फोसिस की बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, तो दे आर वेरी लाइक डेफिनेटली इन्फोसिस का एक अलग से रेपुटेशन है, ठीक है, उस तरीके से होता है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज व्हाट इज द यूज ऑफ IS 13920 and any clause you know, you can just explain about that clause. सर 13980 यूज फॉर डक्टाइल डिटेलिंग in beam, column, footing and all over the building. Any clause you remember? Yes sir, detailing used for beam, just like 30. Okay. What is the use of crank bars in beam? क्रैंक बार सर मैं ये जानता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करो। You need to used to with that. Rate of change of bending moment is developed on beam shear and explain in Hindi because that is wrong. जैसे कि अपन बीम ड्रॉ करते हैं, क्या बोलता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट ड्राइंग ये करते हैं, तो वो एक कर्व शेप में ये होता है, तो वहां पे चेंज होता रहता है बेंडिंग मोमेंट। जैसे कि अगर फर्स्ट पॉइंट है तो वहाँ 0 होगा, सेकेंड तो 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, तो वहां पे जो है ना फेयर फोर्स और एक रेजिस्टिंग फोर्स मतलब बढ़ता घटता जाता है। तो उस कारण जैसे कि बॉन्ड भी ये होता है, डेवलप होता है, और वहां पे फेयर भी डेवलप होता है। तो उस और वहां पे क्रैकिंग भी आता है, फेयर क्रैकिंग, और भी एक दूसरे के क्रैक आते हैं। बहुत घुमा दिया तुमने। सिंपल क्रैंक बास को यूज करने का निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करना ही मेन काम रहता है उसका। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मेन काम बता रहा हूँ, मेन काम। देखो अभी और काम में जाओगे तो फिर और बहुत सी चीज आ जाएंगी, है ना। इंटरव्यू में क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सो दैट कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो रेडी हो जाए ना। देखो क्या होता है जब व्हेन यू जस्ट सेड कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, अब वो पता है क्या होता है, देखो इंटरव्यू को क्रैक करना एक अलग ट्रिक होता है। हम उसको किधर लेके जाना चाह रहे हैं, तुम इतने पॉइंट्स दे रहे हो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे इंटरव्यू में। जब तुमने बोला कि फॉर रजिस्टरिंग द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तुरंत क्वेश्चन आने वाला है, माइंड में प्रिपेयर कर लो क्या क्वेश्चन आने वाला है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ठीक है। जब तुमने बेंडिंग मोमेंट बताया कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस इट्स कॉल्ड क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव, जैसे तुमने बोला कि ऑल द फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, तो पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा, तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि पॉजिटिव या नेगेटिव। कुल मिला के क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, इसको डिसाइड करने का जिस दिन आर्ट तुम समझ गए, तुम इन द सेंस एवरीवन, तो ये समझ जाओ कि इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर हम लोग किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो वी नो कि हाउ टू क्रैक। हो सकता है क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, बट ये जरूर पता है कि क्वेश्चन करने वाले का माइंड कैसे वाइब्रेट किया जाए, कैसे घुमाया जाए, समझ गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, लाइक होप सो यू नो दैट क्वेश्चंस आंसर बिकॉज दैट इज वेरी इजी। द परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम। 2 to 4%, 6%, but we use for 2%. 2 to 6%? नहीं सर, 1 to 6. 1 to
as per IS code 1 to 6%. सर इन कॉलम Yes. सर बहुत ये तो छोटा। पढ़ाए थे आप। नहीं, ये कैसे बात कर रहे हो, ये तो पढ़ाए थे आज ही। तुम जाके IS 456 वाली जो PPT पढ़ाई है जाके देखो, उसमें लिखा है 0.8 to 6%। यस सर। ठीक है, तो ऐसे मत बोले यार ये पढ़ाए थे आप, तो बेइज्जती करवा दोगे आपको। चलो, लेकिन अली अभी तुम्हारा कम्युनिकेशन का मेन प्रॉब्लम जा रहा है। ट्राई टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो मैं तुमको इसमें ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, बस कम्युनिकेशन को अच्छा करो, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर अच्छा है ना, तो बात को थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो कि सामने वाला अंडरस्टैंड करके भी तुम्हारा सिलेक्शन कर सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट कम विथ मिस्टर संदेश। मिस्टर संदेश, रेडी sir. फॉर द मॉक? ठीक है, Yes, sir. ओके। व्हाई शुड आई हायर यू? You hire me because I have the skill of ETAP, CAD Pro, AutoCAD, and other things that you helpful for your structural consultancy. And I have good knowledge of structural uh, structural detailing, structural things that you have required. Okay, what is the full form of ETAPS? Don't know, sir. Huh? You know ETAPS, but you don't know the full form. ठीक है, ये तो बड़ा गड़बड़ है। What is the full form of STAT Pro? Structural uh, structural analysis and no, sir. अभी देखो, जब ये पढ़ रहा था, ये जब अपने बैच में पढ़ रहा था, इसको दोनों चीज याद था। ठीक है, बट ड्यू टू लेक ऑफ प्रैक्टिस या फिर जो बोल सको रिवीजन ना होने की वजह से देखो इसको चीजें भूल रही है। राइट संदेश? Yes, sir. Yes, sir. मुझे तुम्हारा जब बैच चल रहा था तो मुझे याद है मैंने क्वेश्चन पूछे थे और तुमने बताया भी थे आंसर्स। व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट ऑफ ETAPS? .etb. ETB? EDB. EDB. File format of StatPro? .std. .std. When we go for the structure design, if ST required high, how can we reduce the AST? We in software we optimize the AST to reduce the steals, and we optimize up to the maximum limit, and do not structure fail, and yes. If in StatPro that is showing elastic modulus is not provided, how can we fix this problem? Not a sir. If in StatPro there is a warnings UBC, IBC load something, how can we fix UBC load problem? सब भूल रहा है। ठीक है, Not a day. Okay, no issue. I don't have idea you are going to select or not for my interview. नेक्स्ट इंटरव्यू में अच्छा करो संदेश। ठीक है, चीजें भूल रहे हो। ठीक है, हाँ सर। चलेगा। ओके, देखो यही होता है गाइस, कोई उसकी गलती नहीं है, बस सोचो कि उसने नहीं बता पाया तो उसकी गलती है। मुझे पता है क्या होता है, व्हेन यू जस्ट रिमूव द योर रिवीजंस, रिवीजन जैसे ही स्टॉप होता है, ठीक है, ही इज वर्किंग नाउ, ठीक है, वो जॉब कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे रिवीजन आप बंद करोगे, यू फॉरगेट द थिंग्स एंड आपका परफॉर्मेंस कम होने लगता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट किसी का बचा है क्या? समीर, तुम इंटरव्यू देना चाहोगे, मॉक इंटरव्यू? अक्षर का हो गया, अली का भी हो गया, राजेश का भी हो गया, संदेश का भी हो गया। अक्षर गॉट 5 रेटिंग फ्रॉम माय साइड एंड अली गॉट द 5, संदेश गॉट द 4, राजेश गॉट द 7,
राजेश का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर था, ठीक है, आप लोगों में से काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। और देखो अभी करना क्या है, कुछ नहीं करना है, करना है बस ये है कि अभी अली तुमने वो ईटेप्स के लेक्चर तो लिख रखे बट वो चार्ट कंप्लीट नहीं किया दोस्त, ठीक है, हमने कल दिया था लेक्चर नंबर 30 तक, थोड़ा सा मेंटेन करके रखोगे सभी। इट्स नॉट अबाउट अली, अली तो ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत अच्छा, ठीक है, काफ़ी लोग नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेल सीट मेंटेन कर लेना 30 तक का। कल दिया था टास्क परसों बट किसी ने किया नहीं है, अली ने भेजा है एक्सेल सीट, बट इनका भी एक्सेल सीट मैंने देख लिया कि इन्होंने पूरा भी लिखा नहीं ना अली। जी सर। ठीक है, आज 30 तक के लेक्चर्स का सर पूरा वो निकालो, 28 तक हो गया है पर 2 लेक्चर्स वॉच करके डाल दो। ठीक हाँ है। वो तो तुमने लास्ट टाइम लिखवाया था मेरे पास, मैं ना सारी हिस्ट्री लिख के रखता हूँ, ये देखो यहाँ पर तुमने लिखवाया था कि तुमको तुम्हारा ई टेस्ट में 28 हो गया है, राजस का 27 हुआ था, ठीक है, पृथ्वीराज का 15 हुआ था, रमेश का 25 हुआ था, अक्षर का 27, संदेश का 17, मैं तो सबके हिस्ट्री लिख के रखता हूँ। ठीक है, तो हाँ राजेश बोलो, राजेश बोलो। सर मुझे मास्टर्स करना है, मतलब कॉलेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो देख लेंगे। हाँ बट लाइक अभी मैं ज्वाइन हुआ हूँ कंपनी, तो मेरे को वहाँ पे इन्फॉर्म करना मतलब पड़ेगा। नहीं, वहाँ पर इन्फॉर्म करोगे तो कंपनी अलाउ नहीं करेगी, हाँ सर, नहीं। ठीक है, इसलिए इन्फॉर्म मत करो, ऐसे जगह से कर लो जहाँ से क्या बोलते हैं ज़्यादा तुमको रिस्क ना लेना पड़े, टेंशन ना रहे, बस जाके। तुम्हारा घर कहाँ पे है? तो मुंबई में ही, मुंबई में ही है, मुंबई में ही सब है। ओके। मुंबई के आसपास देखो कोई कॉलेज हो जहाँ पर क्या बोलते हैं ऐसी हो कि बस जाके पेपर देने हैं, ठीक है, ऐसे सुविधा हो तो वहाँ पर जाके करो, क्योंकि कंपनी में कहोगे तो कंपनी वाले उसमें 10 तरह की बातें निकालेंगे। छुट्टी मत लो, छुट्टी डायरेक्ट उसी टाइम पर लो जिस टाइम पर तुम्हारा क्या बोलते हैं पेपर है। एग्जाम। हाँ ठीक है, केवल 10 दिन का प्रॉब्लम होता है, 10 दिन भी क्या हो, एमटेक में 5 पेपर होते हैं, ठीक है, यस। तो 5 पेपर का ही प्रॉब्लम है, तो 5 दिन की छुट्टी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सर फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं पेपर या सेकंड में भी होता है? क्या पेपर? यस, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होते हैं क्या? नहीं, सेकेंड ईयर में पेपर नहीं होता, सेकेंड ईयर में पेपर होता है बट शायद 3 पेपर के आसपास सेकेंड ईयर में रहेगा, फर्स्ट ईयर में ही ज़्यादा पेपर का टेंशन रहता है। सेकेंड ईयर में टीचर से आपकी कैसी बॉन्डिंग है, ठीक है, और आप कैसे टैलेंटेड हैं उसके हिसाब से हो जाता है मैनेज, ठीक है। सेकेंड ईयर में केवल 3 पेपर रहेंगे, एक में 2 पेपर रहेगा, बस हो गया, मतलब पूरे साल में और 5 सर पेपर। मतलब किसको समझा कि मैं कर रहा हूँ मास्टर, मैंने बताया नहीं है तो क्या? हाँ तो कुछ कोई दिक, प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत तब होता है जब तुम्हारा वो बात कहीं वहां तक लीक हो, एचओडी तक है ऐसा, टीम लीडर तक? मैनेजर तक, हाँ, ठीक। कंपनी में अपनी बातों को कभी शेयर नहीं करना है, पर्सनल लाइफ को हमेशा प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखना है। इवन तुम ईटेप सीख रहे हो ये भी मत बताओ, ठीक है, हाँ कंपनी में जरूरत हो ईटेप्स का प्रोजेक्ट आया हुआ बोल दो मुझे आता है, ये मत बोलो मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। कंपनी का एक अलग इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर, क्या बोलते हैं आपका ग्रोथ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, अभी तो आगे सीखोगे देखोगे, हैरान भी हो जाओगे कि यार ऐसा भी लोग सोचते हैं, बहुत कुछ हमने तो बहुत देखा हुआ है। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि कंपनी में अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल शेयर मत करो, इवन ये भी मत शेयर करो कि जैसे तुमने बोल दिया कि अली बहुत खराब है, यार अली अच्छा लड़का नहीं है, तुमने किसको बता दिया, तुमने संदेश को बता दिया। अब विश्वास करो संदेश आज नहीं तो कल ये लीक कर देगा किसके पास, अक्षर प्रजापति जो तुम्हारा टीम लीडर है उसके पास। अब क्या हो गया कि संदेश को पता चल गया कि अली खराब है, कौन बोला था, राजस ने बोला था। अब राजस तुरंत जाके, सॉरी संदेश जो तुरंत जाके अली को बोलेगा और अक्षर को जाके बोलेगा, अक्षर क्यों को बोलेगा क्योंकि मैनेजर है तो इससे थोड़ा सा अप्रिसिएशन ले लेगा, और अली से इसलिए बोलेगा कि अली और राजस की थोड़ी सी न बने, तो इससे क्या होगा फिर अली बुराई बताएंगे राजस की, तो अब क्या हो गया तुम्हारी बुराई बुराई लीक होना स्टार्ट हो गया। तो कंपनी के अंदर प्रोफेशनल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट जो काम दे रहे हैं करो, करके निकलो, यही सबसे अच्छा तरीका होता है कंपनी में। डाटा मत लीक करो अपना खुद का तो कभी नहीं, है ना। सर तो वो नागपुर की कंपनी आप, सॉरी वो कॉलेज बताया, हाँ वहाँ पे मतलब वहाँ के जो अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं वहाँ पर मेरे क्या बोलते हैं पहचान के लोग हैं, अगर चाहिए होगा तो वहाँ पे भी बोल दूंगा, कर देंगे वो लोग, तुम्हें हाँ जाना सर, भी नहीं मतलब मैं पड़ेगा। घर वालों को पूछूंगा। हाँ, हाँ वो पड़ेगा। हाँ पूछ लो, तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ पेपर के टाइम पे जाना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है, जाके आराम से हाँ पेपर दे देना, और तुम्हारे घर से कितना दूर है वो देख लो, हाउ लॉन्ग फ्रॉम योर डिस्टेंस,
तो ट्रेन, हाँ ठीक है तब। हाँ, अपने हिसाब से देख लो, अगर वहां पर तुमको करना रहेगा तो बताना, बात कर लेंगे। ठीक है, मुंबई में मेरा आज कोई भी नहीं है, पुणे में भी है और तो वहाँ नहीं है। हम्म, चलेगा, चलो ठीक है, फिर आज हम लोग लेक्चर 30 तक का केवल एक्सेल सीट बनाएंगे, कल एक्सेल सीट देखकर तब आगे चलते हैं, रिलैक्स होके चलो, सर मैं मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। मेरा लेट कर दूंगा क्या लेट मतलब? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जरा, नहीं लेट क्या मतलब तुम, लेट मतलब फ्राइडे तक दे दो यार, ये फ्राइडे भी तक खत्म करो, हाँ हाँ ठीक है। फ्राइडे तक दे दो एटलीस्ट, ठीक है, यस सर। चलेगा, ओके, हाँ फ्राइडे तक सबका ही, फ्राइडे को ही करेंगे, अभी बीच में नहीं करेंगे डिस्टर्ब किसी को, हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, तो इसलिए फ्राइडे को ही पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं मैनुअल और एक्सेल का पूरा पीडीएफ दे दे रहा हूँ, आप लोग बैठ के घर पे बैठ सकते हो, अभी तुरंत ही दे रहा हूँ। चलो।